السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا اسپحال اور آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، پاناما لیکس کی تحقیقات اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ریوائیول پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم پاکستان جناب یوسف رضا گیلانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ وزیر اعظم ضرور کہتے ہیں، بے شک ساتھ سابق لگاتے ہیں، صدقے تھوڑی ڈھانڈے پنگال کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے جنید صاحب کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ریوائیول، یہ بہت بری بات ہے۔ دیکھیں، ریوائیول آپ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جیسے پیپلز پارٹی آئی سی یو میں لیٹی ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ ایدے بچن دا کوئی چانس نہیں ہے، نو کراچی لے جاؤ۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے انہوں لاہور لے جاؤ۔ لاہور میں ہے ہی نہیں تو پھر ہم کیوں لاہور لے جائیں؟ جہاں پہ ہے ہم نے اسی بڑے شہر میں لے کے جانی۔ اور اب ایک دم ڈاکٹر نے آ کے کہہ دیا کہ ریوائیول ہو گیا ہے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی ایک جمہوری سچ ہے، بالکل بالکل، اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ سانچ کو آنچ نہیں۔ مگر مجھے پلیز یہ بتا دیں کہ سانچ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سچ کا مطلب سچ۔ تو یہ بزرگ سیدھا سچ کیوں نہیں کہتے، سانچ کیوں کر دیتے ہیں؟ سچ کے ساتھ پھر اچ ہوگا نا، سانچ اور آنچ ہوگا نا۔ یعنی کہ قافیہ ردیف ملانے کے لیے انہوں نے لفظ کا بیڑا غرق کر دیا۔ صدقے ونجا کیا گھمن گھیری پا کے لفظ کلیئر کیتے اس ایکو گمن گیری پاندے موت پاؤندی ہے۔ لا سٹکا گمن گیری اے نہیں گمن گیری نے گمن گیری بند کر یار، بند کر میرا پتر، ایک وال چلا ہے۔ ایکو کہنے نے گمن گیری۔ قربان ونجا صدقے ونجا اپنے مرشد تو قربان ونجا۔ یہ سیاست بھی ان کو ہم سکھاتے ہیں اور گمن گیری بھی ہم سکھاتے ہیں۔ گیلانی صاحب، سیاست بھی گھمن گیری کا دوسرا نام ہے۔ آپ کو سیاست آتی ہے جی تو گمن گیری ڈال کے دکھائیں۔ دیکھیں، سیاست الگ چیز ہے اور گمن گیری الگ چیز ہے۔ یہ فضل الرحمان صاحب کو جانتے ہیں نا، وہ سیاست کے ماسٹر ہوئے ہیں، مگر گمن گیری وہ نہیں ڈال سکتے۔ لیکن مولانا گھمن گھیرا اچھا ڈال لیتے ہیں۔ دیکھیں، میں تو ان کی عزت کرتا ہوں اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو گھیرا ڈالتے ہیں وہ انہوں نے ہماری حکومت کو بھی ڈالا تھا اور نون لیگ کو بھی ڈالا ہے۔ اچھا، اب جو نون لیگ کو گھمن گھیری پڑی ہوئی ہے، اس میں سے نکالنے کے لیے اس کو کیا تجویز دیتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ وزیر اعظم کا بھی احتساب ہونا چاہیے، بالکل، چونکہ میرا ہوا تھا۔ کب؟ بھائی، جب میں وزیر اعظم تھا مجھے تو کورٹ میں کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ وزیر اعظم کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ یہ دوگلی پالیسی نہیں ہونی چاہیے۔ میں بھی وزیر اعظم تھا، یہ بھی وزیر اعظم ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں گیس پہ چلتا تھا اور یہ پٹرول پہ چلتا، یا میں سادہ وزیر اعظم تھا اور یہ تیلوں والے ہیں، یا میں 2 ویلر تھا اور یہ 4 ویلر ہے۔ وزیر اعظم تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ یہ لفظ کتوں گھینا دے تو ایک منٹ ٹھہرو، ابھی تمہاری گمن گیری ڈلواتا ہوں، ٹھہر جاؤ۔ تو یہ ایک جیسا وزیر اعظم ہونا چاہیے، صحیح، اور اس کے ساتھ سلوک بھی ایک جیسا ہونا چاہیے۔ بالکل، اس لیے میں کہوں گا کہ ان کو بھی عدالت میں کھڑا کرنا چاہیے، چونکہ مجھے بھی کھڑا کیا تھا۔ یہ تو نہیں کہ یہ ڈبل سٹینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور میں سائیڈ والے سٹینڈ پہ کھڑا ہوتا ہوں۔ سائیڈ والا سٹینڈ پہ وہ جو موٹر سائیکل کا سنگل سٹینڈ ہوتا ہے، جس کو پاؤں سے نیچے کریں تو وہ ایسے قربان ونجا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ برابر کا سلوک ہونا چاہیے۔ اچھا گیلانی صاحب،
पंजाब में पीपल्स पार्टी के रिवाइवल पर तो बात करें ना, कायरा साहब ने सदारत संभाल ली है। मैं माफी चाहता हूँ, आप फिर रिवाइवल कह रहे हैं। चले दोबारा एक जोश और जज्बे के साथ काम ये करें। बिल्कुल ठीक है ना? मैं भी यही चाहता हूँ कि आप ये कहा करें कि पंजाब में पीपल्स पार्टी में गर्मजोशी पैदा करना। तो वो उस हवाले से मैं आपको बताऊं जुनैद के अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सिंध से ज्यादा पीपल्स पार्टी अब आपको पंजाब में गर्म नजर आएगी। अच्छा, यानी आपका मतलब है कि अब पंजाब भी ऊपर उठेगा? ये जो आप करके दिखा रहे हैं ये पीपल्स पार्टी है या पंगूड़ा है जो आप कभी ऊपर कर रहे हैं कभी नीचे? नहीं, मतलब पीपल्स पार्टी पंजाब में इस वक्त यहाँ पे है, सिंध में यहाँ पे है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ चली जाएगी? तो यही कहना चाह रहा हूं, और मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये सिंध में और ये पंजाब में है तो ऐसे हो जाएगी। आप देखिएगा कि अब पंजाब में आपको हर तरफ पीपल्स पार्टी नजर आएगी। इतने पंजाब में अमरूद नहीं होंगे जितनी पीपल्स पार्टी होंगी। कीड़ों वाले अमरूद ना हो। ये तो आप बददुआएं देनी शुरू हो गए हैं। वो जैसे औरतें लड़ती हुई कहती हैं, जाते नू कीड़े पहन, जा तेरा कख ना रहे। तो मेरा मतलब है कि ये मौजूदा वजीर आजम का भी एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि मेरी तो इन्होंने 1 मिनट में सियासी दुनिया अंधेर कर दी थी। मुझे अच्छी तरह याद है, आप कोर्ट से वापस अपनी गाड़ी में नहीं गए थे वजीर आजम? जुनैद साहब, अफसोस सिर्फ इसी बात का नहीं है कि मैं वजीर आजम वाली गाड़ी में नहीं बैठा। अफसोस ये भी है कि मैं आंदियां ओदी टैंकी फुल कराई सी और जांदियां फिर दूजी गड्डी दी टैंकी फुल करानी पई, क्योंकि इस्लामाबाद से मुल्तान तक 1.5 टैंकी पेट्रोल लगता है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, जनरल रहील शरीफ जा रहे हैं जी 29 तारीख को। खैर खैरियत के साथ। हाय 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 हाय, किस शेर की बरामद है कि रन कांप रहा। देखो जरा, जाते जाते भी बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं तड़ातड़, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अरसे के बाद को ऐसा हुआ कि किसी भी फील्ड का कोई बंदा रिटायर हो रहा है तो लोग उसको याद कर रहे हैं और तारीफें कर रहे हैं। बड़ी बात है। और जाते जाते जो उनका हिंदुस्तान के हवाले से बयान है वो भी लाजवाब है। आखिरी बयान है। हाँ, लुडी बिल्कुल बनती है लुडी। बयान क्या है भला? बयान ये है कि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो हिंदुस्तान अपने निसाब में सर्जिकल स्ट्राइक को शामिल कर बच्चों को पढ़ाया करेगा। ये होती है सर्जिकल स्ट्राइक। वाह 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 वाह। सुबह की सैर में लिखा करेंगे, सुबह सुबह उठ के पाकिस्तान की सरहद की तरफ मुंह करके लंबे लंबे सांस ले, और हर दफा कानों का हाथ लगा के तो नीचे गिटों का हाथ लगा। जब भी ऊंचा होना है कानों को हाथ जरूर लगाना। वैसे अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों, बरकतों और इनायतों के दरवाजे जितने इस शख्स पे वाह किए रखे हैं ना, बहुत कम लोगों के नसीब में इतनी मकबूलियत और इज्जत आई हो। क्या कहते हैं? देखें, अरे ये है कि सारा मुल्क, जरा आप थोड़ा सा 2, 3, 4 साल पीछे चले जाए ना, सारा मुल्क बाखुदा इतना सख्त परेशान था कि रोज सवेरे उठ के, मैं तो अपनी बात करता हूँ, मैं टीवी सिर्फ इसलिए लगाता था कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक माफी दे दे, अल्लाह खैर खैरियत रखे, आज कहाँ पे बम चला। और देखो जरा कि कितना सुकून हो गया है, टेररिज्म खत्म हो गया है, बेशुमार ऑपरेशन हुए हैं, बेशुमार दहशतगर्द या दौड़ गए हैं, दुड़की लगा गए हैं यहाँ से, या मारे गए हैं। कराची के हालात देखो यार क्या थे। जी जी, कितने खराब थे। खुदा ने कभी कराची की तरफ से ठंडी हवा का झोंका नहीं आ रहा था। अब देखो कराची के हालात क्या है। अल्लाह करे ये तसलसल रहे इस तरह, करम करे, और अल्लाह ताला करे कि हमें अच्छी खबरें मजीद सुनने को मिलेंगी, और इंशाल्लाह मिलेंगी। हाँ जी। और लेकिन ज्यादा तारीफें ना करो अब राहील शरीफ की, वरना सोशल मीडिया वाले तुम्हें कह देंगे बूट पालशी है। नहीं, मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के हवाले से भी और आपके मीडिया के हवाले से भी। इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि आदत हमारी अब ये बन गई हुई है कि सिर्फ पैड़ ही लबना है बंदे में से। अगर किसी में कोई अच्छाई है या कोई किसी की खूबी है या किसी का कोई कारनामा है, उसको डिस्कस किया तो कान पकड़वा देंगे। नहीं, सिर्फ लोगों की बात नहीं है, फौज को क्रिटिसाइज करना, पाकिस्तान की फौज को क्रिटिसाइज करके
ताली बजवाना ये भी एक ट्रेंड बन गया है, एक बकायदा ताली बजवाना नहीं, दाने खाना। अजीब और गरीब। हाँ दाने। अच्छा मेरा एक सवाल ये है अपने तमाम जो भाई जो ये टर्म इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई पाक फौज की तारीफ करता है, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब की तारीफ करता है, कराची के हालात की बेहतरी की तारीफ करता है, तो उसको बूट पॉलिशिया कहते हुए मैं ये समझने से कासिर हूँ कि यार प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे भी इस फील्ड में 25-30 साल हो गए, मुझे ये बताओ। कम बता रहे हो, कम बता रहे हो। अच्छा सुनो तो सही ना, मैं बिल्कुल छोटा सा था जब मैं तुम्हारे दफ्तर पे गया। यार सुनो तो सही, मैं ये सवाल करता हूँ कि फौज जो है वो जर्नलिस्टों को, सहाफियों को क्या देती है? प्रैक्टिकली बात करो ना। हुकूमतें तो सब कुछ देती हैं, प्लॉट भी देती हैं, पैसे भी देती हैं, गैर मुल्की दौरे भी देती हैं, कुर्बत का नशा भी देती हैं। फौज क्या देती है मुझे बताओ? फौज के अगर कोई बूट पॉलिश करता है तो किस लिए करता है? मुझे तो, मैं तो ये समझने से काजिर, मुझे बताएं लोग कि जी बूट पॉलिश ये फौज क्या देती है मुझे बताओ ना। मतलब मैं तो आज तक किसी सहाफी को नहीं जानता कि फौज ने उसको प्लॉट दे दिया हो, फौज ने गैर मुल्की दौरे करवाए हो किसी को, मुझे बताओ अगर दिए तो। हाँ जी, आप बेहतर जानते हैं, सीनियर आदमी हो तुम भी। मगर मैं यार ये कहता हूँ कि खुदा के लिए इस यहाँ पे सिर्फ बुराई नहीं है, हर शख्स यहाँ पे बुरा नहीं है, और हर शख्स के अंदर सारी बुराई नहीं है, अच्छाइयाँ भी हैं। बहुत अच्छी। ये इंसान है, ये इंसान है, और डिपार्टमेंट भी चूंकि इंसानों से ही बनते हैं, डिपार्टमेंटों में भी बुराइयां भी होंगी मगर अच्छाइयां भी हैं। और अल्लाह के फजल से फौज हमारी वाहिद अदारा ऐसा है जिसमें ज्यादा अच्छाइयां हैं। बेशक तुम रिकॉर्ड उठा के देख लो कि हस्बे हाल ने हमेशा जो फौज के वो पहलू है जिन पे तनकीद की जाना जरूरी है, हमने हमेशा तनकीद भी की है, लेकिन फौज का कम से कम वकार और ग्रेस जो है उसकी, उसको मलूज़े खातर रखा है। फौज को एज ए इंस्टीट्यूशन कभी मैं लाइन नहीं किया। मतलब ये फौज के ये जो हाउसिंग स्कीमों के मामला है, अक्सर हमने इसको क्रिटिसाइज किया है, ओपनली किया है। फौज के बाज दफा सिविलियंस के साथ जो सलूक रवा रखा जाता है उसको हदफ तनकीद बनाया, खुलेआम बनाया। लेकिन फौज को एज ए इंस्टीट्यूशन क्रिटिसाइज करना, उसकी पॉलिसी को इस तरह लेके चलना जिससे फौज का मोरल गिरने। अब देखो बात ये की जा रही, अभी ये आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है, तो मैं देख रहा हूं 2 दिन से एक आलम दीन की तरफ से, जिनको वो बकायदा यानी नून लीग के टिकट पे वो सेनेटर मुंतखब होते हैं, ठीक है, उन्होंने आके वीडियो मैसेज के जरिए ये कहा है कि जनाब एक जनरल साहब जिनका नाम आर्मी चीफ के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है, उनके बारे में ये कहा है, उनके मजहबी अकायद के को सवालिया निशान लगा दिया उनके मजहबी अकायद पे, और कहा गया कि जी इनको आर्मी चीफ ना बनाया जाए। अब अगर तुम मुझे ये बात बताओ कि अगर इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए तो क्या ये न्यूज लीक से बड़ा स्कैंडल बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं, बिल्कुल किसी फौज के अंदर ये क्लियर कट मुनाफरत फैलाने वाली बात है, और वो जिस जनरल के मजहबी अकायद की तरफ इशारा किया जा रहा है वो भी 100% बेबुनियाद बात, 100% गलत है, झूठ है, लग़्व है। अच्छा, नहीं तो फिर तो वाकई ये बड़ी खतरनाक बात है। और ये इस तरह तो नहीं किसी मुसलमान को, वो सादा आदमी भी हो, वो तो एक अहम ओहदे पे फायद है। जो अभी लोगों के ज़हन में एक है ना खौफ की फिजा है कि पता नहीं जनरल राहील शरीफ चले जाएंगे तो क्या होगा, मुल्क का दोबारा वही मामला शुरू हो जाएगा। मैं पूरे यकीन के साथ तुम्हें एक बात बता दूं कि नवाज शरीफ साहब का इंतखाब इन दोनों जनरल जिनका नाम लिया जा रहा है, इनमें से कोई दोनों, मतलब मेरी इतला तो यही है कि ये जो कुर्रा फाल है जनरल इशफाक नदीम के नाम निकलेगा, लेकिन दोनों में से इंतखाब किसी का भी हो, मैं तो पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि ना तो ऑपरेशन ज़रबे अज़ब को कुछ होगा, और ना ये कराची की जो सूरत हाल बिगड़ी है ना पिछले 10-12 दिनों से ज्यादा, आपको नजर आ रहा है कि वहां पे टारगेट किलिंग भी थोड़ा जोर पकड़ रही है और कुछ लोगों की बड़ी तेजी के साथ जमानतें भी हो रही हैं। ये सिर्फ ट्रांजिशन पीरियड का फायदा उठाया जा रहा है। ये जो ट्रांजिशन पीरियड है ना कि एक जनरल जा रहा है और दूसरा आ रहा है, उसको आते आते 2-4 दिन, 5-10 दिन, महीना लगेगा, ये उस पीरियड का फायदा उठाते हुए ये जल्दी जल्दी ये काम किए जा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ जो है ये रिवर्स हो जाएगा। ये मेरी बात तुम लिख लो कराची के हवाले से भी, क्योंकि इस वक्त देखो जो कुछ भी है ना, अगर हुकूमत के लिए भी कुछ सख्त वक्त है तो वो भी कोई तब्दील नहीं होगा। प्रॉब्लम इस वक्त पता है क्या है कि ये जो कुछ हो रहा है ना इस वक्त मुल्क में, ये वर्सेस कोई राहील शरीफ नहीं था, ये वर्सेस फौज था। मतलब इस वक्त जो अगर समझने की बात है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को भी अपने ये जो अंदर एक उनके टेक्निकल फ्लॉ है ना,
اس کو ہر قیمت پہ ریموو کرنا ہوگا کہ ہر آرمی چیف کے ساتھ انہوں نے بگاڑ کے رکھنی ہے, ہر آرمی چیف کے ساتھ. مطلب جنرل آصف نواز, جنرل وحید کاکڑ سے لے کر آج تک ان کے بارے میں اگر یہ کہا جاتا ہے تو غلط نہیں کہا جاتا کہ نواز شریف صاحب اگر نواز شریف کو بھی آرمی چیف بنا دیں تو نواز شریف کے ساتھ 6 مہینے بعد الجھنا شروع کر دیں گے. تو اس وقت تو حالات کافی اچھے گزرے ہیں 3 سال میں. نہیں, وہ کون سا پیج ہے, یقیناً کشیدگی تھی, لیکن اس کشیدگی نے کبھی بھی اپنی حدوں کے باہر پاؤں نہیں رکھا. ابھی بعض لوگ اس لیے نالا نظر آتے ہیں راہیل شریف صاحب سے کہ انہوں مارشل لا کیوں نہیں لگا دیا. بھئی کیوں مارشل لا لگا دیتے ہیں؟ انہوں نے جو کچھ آئین ان سے ڈیمانڈ کرتا تھا, جو دستور اجازت دیتا تھا, وہاں تک وہ میکسیمم گئے, اپنی حد کے آخری سٹیپ تک گئے. جیسے وہ فیلڈر ایک چھکا بچانے کے لیے بالکل آخری لمٹ تک جاتا ہے نا, لیکن باؤنڈری کو ٹچ نہیں کرتا. تو راہیل شریف نے بھی یہی کیا کہ اس باؤنڈری پہ اپنا پاؤں ٹچ نہیں ہونے دیا. ایک کمال اس نے کیا بندے نے. اور اس کے لیے میں پھر وہی بات کروں گا کہ یہ کارنامہ یا یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ صرف وہی بندہ رکھ سکتا ہے جو مالی حوالے سے جو فائنینشیل انٹیگریٹی رکھتا ہو, جو دیانتدار آدمی ہو, خالص صفائی ہو, جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. ہاں جی, یہ جو تم نے چھکے والی مثال دی ہے باؤنڈری والی, اس پہ تمہارا ایک پما لے سکتا ہوں. یار پمے پہ تم آج پڑھتے ہو, اٹ از سیریس میٹر, ناٹ اے جوک. ابھی یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پاکستان میں ہندوستانی فلموں کی بندش کے بعد پیدا شدہ صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف فلم ڈائریکٹر ہیرا سپر ہٹ. ہیرا جی السلام علیکم. بسم اللہ جی, بسم اللہ. نیند آ رہی ہے؟ نہیں جی, نیند کا دلی آنی. آپ کا یہ جو بالوں کو لہرانے کا انداز ہے نا ہیرا جی, یہ بہت زبردست. اخیر ہے جی. دیکھیں جنید صاحب, سٹائل کوئی بھی ہو, وہ ہیرو کا ہو یا ڈائریکٹر کا اپنا ہو, ڈائریکٹر خود ہی دیتا ہے. ڈائریکٹر نام ہی اس چیز کا ہے, سٹائل دینے کا. ذرا دوبارہ کریں. مطلب یہ ہے کہ یہ میں جان بوجھ کے نہیں کرتا, میرا سٹائل ہی یہ ہے. واہ واہ, کیا سٹائل ہے جی. اچھا دوروں اینج لگتا جی میں ککڑ دے گلے جی کچھ پھسیا ہے. غریب آدمی دے یا پرنالے چ کچھ پھسیا ہوتا ہے, یا اودیاں انگلاں چ کچھ پھسیا ہوتا ہے, یا اودے ککڑ دے گلے چ کچھ پھسیا ہوتا ہے. سر اس وقت ہمیں آپ کی اشد ضرورت ہے. راہیل شریف ہے. نہیں سر, اس فلم انڈسٹری میں ان کی اشد ضرورت ہے کیونکہ انڈین فلم بند ہو چکی ہے, اب یہ ہوش پکڑے ہیں. او بیٹا, صرف انڈین فلم پر پابندی ہی تو مسئلے کا حل نہیں نا, سانو بھی تو کچھ کرنا پڑے گا. میرا بڑا برا نشئی تھا جی. اچھا, کرنا کچھ نہیں سی. لو جی روز داتا صاحب دربار تو پنڈارا لے آ کے گھر کھا چھڈے, اچھا, نالے پرجائی نو کھوا چھڈے. اچھا. پرجائی نے ایک دن پھاڑ لی ڈانگ, اٹھ سٹیا انہوں, خبردار آئی تو بعد کدی پنڈارا لے کے آیا. اچھا, انہیں پنڈارا لے آنا چھڑتا, کروں باہر نکلنا بھی چھڑتا. پرجائی نے بھی کر 2 ہفتے کچھ نہیں پکایا, 2 ہفتے بعد پرا مر گیا. بھئی مسئلہ ہے وے باہر دا پنڈارا اگر بند کراؤن دے ہو تو کار کچھ پکاؤ تے صحیح. بس اینی ساری گل جے. یہ آپ کے بازوؤں کا سٹائل دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. یہ میں ریما کو سکھیا تھا جی. دیکھو صرف ڈائریکٹر ہی نہیں آرٹسٹ کو کچھ سکھاتا, آرٹسٹ بھی کچھ نہ کچھ ڈائریکٹر کو سکھا کے نکل جاتا ہے. اے ہیرا صاحب باواں آپ ونگیاں کر دیں یا ہے ہی ونگیاں؟ پتر ونگیاں کیوں, میں چھاتے ایٹاں چاڑ دا رہی. یہ سٹائل ہے. مسئلہ یہ ہے جنید صاحب کہ آپ کے پروگرام میں آج میں صرف 2 باتیں کرنے آیا ہوں. اچھا 2 ہی کر. ایک بات ہے حکومت سے گزارش, حکومت کو بھی فلم انڈسٹری کا ساتھ دینا چاہیے. انڈین فلم اگر ٹاپ پہ چلی گئی ہے ایشیا میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کا ساتھ دیتی ہے. دوسری بات میں یہ کہنے آیا ہوں مخیر حضرات سے جڑے نوٹاں لے پائی نے میرے, بھائی اپنے پلازیاں چ اپنی جگہاں تے سینمے بناؤ. ہیرا سپر ہٹ جے فلم بنا بھی لے گا تے لائے گا کتھے کیل نال کان تے. سینما ہوئے گا تے فلم لگے گی نہیں. تو آپ بھی کوئی فلم بنا رہے ہیں؟ نہیں بنا رہے ہیں جی, بنا رہے ہیں, بس فلم آستے مین جوڑی لبن ڈے ہیں. اے جوڑی دیکھو جناب. بیٹا میں سینمے چ ویچن والی جوڑی لبن ڈے ہیں, سبزی منڈی چ ویچن والی نہیں.
सर आप गौर तो करें, गग्गू बग्गू। ਲਓ ਸ਼ਕਲੋਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸਨ, ਨਾਮ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਲਏ। ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਚਾੜਤੀ ਕਹਿਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਗੂ ਵੇਖ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਬੂਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲਵਾ ਲਓ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਾਹ ਕੇ ਲੜਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਗੂ ਗਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਚ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਗੱਗੂ ਬੱਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਵਾ ਬਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਗੱਗੂ ਬੱਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਗੱਗੂ ਬੱਗੂ ਦੀ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਲ ਡਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਗੱਗੂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਆ ਬੱਗੂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਹਾ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਡਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਓਏ ਬੱਗੂ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ। ਤੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਬੜਾ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੇ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਸਰ ਜੀ ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਰੀਮ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, ਤੂੰ ਸੂਟ ਤੇ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। सर आप इसे छोड़ें, अब मुझे तो ट्राई करके देखिए, टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। ਪੁੱਤਰ ਟੈलेंट ਨਹੀਂ ਕੂਟ ਕੂਟ ਕੇ ਭਰੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈलेंट ਕੂਟ ਹੀ ਦਾ। हीरा साहब आप उनका ऑडिशन तो लेके देखे ना। ਚਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਚ ਕਾਸਟ। फरमाइए सर। ਲਓ ਜੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋਇਨ ਬੈਠੀ है? साथ कौन? ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਟ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। खुदा का, आप ऑडिशन ले, आप तो चेजा ले रहे। ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮੀਨ ਉਬੈਦ ਚਨਾਏ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂ ਚੁਣਿਆ। ਆਸਕਰ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਲੱਭਦੇ। ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਕਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਜ਼ਾਬ ਪਵਾ ਲਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਸਟ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਕਿ ਤਜ਼ਾਬ ਪਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। सर आप जुमला तो बताएं सर। लो जनाब, आपने हीरोइन को आके कहना है रास्ता, तुम्हारा मेरा एक ही है रास्ता, तुम्हें है खुदा का वास्ता, आओ यहाँ से निकल चले आस्ता आस्ता। वाह जी सर, एक्शन क्या सर? जी एक्शन सर। ये शुरू हो जाओ। ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਾਂਗਾ? पुत्र तेन ही मारनी है पैन। सर एक्शन करें सर। पुत्र जितनी देर हो गई है फिल्म बनाए हूं तो भूल ही गया। चलो यार मैं कह देता हूँ, एक्शन। रास्ता तुम्हारा मेरा एक है रास्ता, तुम्हें खुदा का वास्ता, यहाँ से निकल चलो आस्ता आस्ता। तुम मेरे महबूब बनो खुदा ना खास्ता, सुबह से मैं इंतजार कर रही हूँ, क्यों नहीं लाए नाश्ता? आज से तुम्हारा वो रास्ता और मेरा वो रास्ता। क्यों जी, चलेगी फिल्म? जिन्हें का इश्क नहीं चलन दिया उन्होंने फिल्म की चल रही है। आपने हमें हेरोइन कौन सी दी है ये भी तो देखे। ते तुसी मैनू केड़ा हीरो फवाद खान दिता है? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਾਣਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। तेरे सदके जावा मोरेशियस, जिंदगी च एक करी घरों बाहर गया जे संभड़े आल खाला दे घर। ਖਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਿਆ। क्यों खोल दी बुआ बेटा, उन्हें हले फर्श तो होता ही है तो उतो चला गया। सो जुनैद साहब, मैं जोड़ी फिल्म च पा के अपने पैसे नहीं डुबाना चाहता। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ ਪੈਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਛੋਲੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋਗੇ? लो जुनैद साहब, जिन्होंने डायरेक्टर ਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਫਿਰ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੇੜੀ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। और गाहक ने आके कहना कि भाई जी 20 रुपए की फिल्म पा दियो ते मौसीकी जरा बहुत ही पाना। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, बदतहजीबियों में एक बदतहजीबी है जो काफी दिनों से मेरे दिमाग में कुलबला रही है। वो ये है कि अक्सर औकात घरों में, फैमिलीज में या बहुत दोस्तों के किसी करीबी सर्कल में किसी का निक नेम होता है या किसी की छेड़ होती है। अब वहां तक तो गवारा है कि घर के अंदर आप उसको निक नेम से बुलाएं या उसको छेड़ भी ले, या दोस्तों के हल्का जो आपका हल्का है बाब है वहां बात कर ले। लेकिन उसकी वर्क प्लेस पे जाके, उसके ऑफिस में, उसकी किसी ऐसी जगह पे जहां पे बहरहाल उसका, जहां पे हिफ्ज़े मरातब का ख्याल रखा जाना चाहिए, वहां पे जाके उसको निक नेम से बुलाना या उसकी छेड़ को इसलिए रिपीट करना कि ताकि मेरी उससे बेतकल्लुफी जाहिर हो सके। बहुत बुरी बात है जी, एक बंदा चीफ एडिटर बन के बैठा हो अपने दफ्तर में, आगे पीछे बंदे फिर रहे हो, पिए चाय लेने के लिए बेचारा ऐसे खड़ा हो अदब से, और एक बंदा उकाड़े से आगे सीधे ही कहा, टीपू सुना की हाल है।
यार मैंने तो टीपू को कभी भी माइंड नहीं किया जी। मुझे तो फख्र है इस पे, टीपू सुल्तान इसमें बामुसम्मा। क्या बात है टीपू सुल्तान लेकिन पालते परिंदे हैं। अरे वाह। और परिंदे भी को अकाब शिकाब नहीं, छोटे तोते जिसको बिल्ली ले जाती है। टीपू सुल्तान की तरह जी आजकल सैड हुआ है जी, उसका तोता बिल्ली ले गई है। होता है ना जी, टीपू सुल्तान आजकल की तरह जी मुल्तान पहुंच गया फौजी ले, टीपू सुल्तान की तरह जी तोता लेके डॉक्टर के पास पहुंच गया। अब बिल्ली लेके तो फिर भी टीपू सुल्तान की शनाख्त शेर था ना, तो शेर की तो खाला है ना। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या कहना। नहीं बात आते जी लोग। मैं गया हूँ जीजी एक शादी पे, अच्छा, तो सारे इज्जत से बुला रहे हैं, गौरी साहब आ गए, मैंने भी हाथ लाया, गौरी साहब जा रहे हैं। दूल्हे के पास गया हूँ मैं स्टेज पे, तो दूल्हा मुझे, मैंने उसको सलामी दी है, अच्छा, तो दूल्हा मुझे देखते कहता है गौरी साहब टीवी पे तो आप थोड़े से चिट्टे लगते हैं, यहाँ तो बेड़ेगर को है। मैंने सलामी पकड़ी और हाथ से सलामी दे के और निकला। अरे ठीक है, ऐसे बंदे को बस मेरी शादी सलामी देनी चाहिए। अजीजी मैं क्या करूं, मेरा तो मोहल्ले में से गुजरना अजाब हो गया, हर तरफ से आवाजें, ओ टाणे, ओ रेडू, ओ लाटू, और गाल सुनो एक नस्तर। नहीं तो और तुम्हें मल्ले वाले अकमल खान कहा करे। मैं भी इसीलिए चुप कर जाता हूँ कि नाम तो सारे सच्चे ही ले रहे हैं। अच्छा जी, एक बात तहजीबी जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, वो बात तहजीबी भी है और मुआशरे के बिगाड़ का भी सबब बन रही है। अच्छा, ये जो हम बैठ के अपने बच्चों के सामने रिश्तेदारों की बुराइयां शुरू हो जाती है ना, हाँ जी। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है कि बच्चों को उनके बचपन से उनके येन से दूसरों के लिए ऐसी तस्वीर डाल देना कि वो सारी जिंदगी फिर वो भी नफरत से ही भरे रहे। बिल्कुल सही। इट इज वेरी बैड। देखो ना, अक्सर मर्दों की आदत होती है कि बच्चों के सामने शुरू हो जाते हैं, तुम्हारे मामे नहीं चंगे। भाई आजकल जदीद दौर है, को बच्चा आगे से कह दे जी मामे नहीं चंगे तो उन्होंने भैन मोड़ा। सीधी बात है, भैन उनकी को आप जानू जानू कह रहे होते और मामे नहीं चंगे। वाह जी वाह। ये भी तो बताओ ना कि दूसरी तरफ माएं भी बच्चों को तो कह रही होती है ना कि तुम्हारे चचे और ताए नहीं ठीक। अरे ये भी गलत है, आगे से बच्चा कह दे कि मां जी अगर ताए चाचे नहीं ठीक थे, अब्बा जी केड़े तैयब और दुआन दे पुत्र ने। इन्नी गल जेड़ा बच्चा अपने अब्बे के सामने कह देगा फिर उसकी शामत आ जाएगी। नहीं, मसला ये है कि बच्चों को जुबान दे देते हैं ना हाँ जी। हम खुद अगर बच्चों को बुराइयां दूसरों की बता रहे होते हैं, रिश्तेदारों को बुरा भला कह रहे होते हैं, मोहल्लेदारों को बुरा भला कह रहे होते हैं, तो ये हम बच्चों को बुरी जुबान दे रहे होते हैं। बिल्कुल। फिर वो भी बदतमीजी कर सकते हैं, वो भी किसी को बुरा भला कह सकते हैं। कहने का मेरा टेक्निकली ये मतलब है कि अजदानी समझना बड़ा मुश्किल काम बिल्कुल है। अच्छा यार, एक और बात का मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, पता नहीं बदतमीजी भी है या नहीं, कि अगर एक बंदा एक ग्लास से पानी पी रहा है और दूसरा बंदा वही ग्लास इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा पानी डाल के हंगाल के उसको साफ कर लेता है और फिर पानी पीता है, तो पहला बंदा माइंड कर जाता है ये बात कि मैं कोई छूत हूँ, तुमने ग्लास धोया क्यों है, हंगाला क्यों है। मेरा ख्याल इसमें माइंड करने वाली तो कोई बात बिल्कुल नहीं। नहीं माइंड करना चाहिए, ना ही ये पूछना चाहिए कि मैं कोई छूत हूं, अगला कह दे आहो जी। अल्लाह माफ करे, छूत की बात नहीं है, जिस तरह बीमारियां फैली हुई हाँ जी। हैं, हमें आपस में भी घर में भी एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बाहर गए हो तो आप ऐसा करें, घरों में भी आप देखो अक्सर ऐसे होता है, किसी को अल्लाह ना करे हेपेटाइटिस है तो इस डॉक्टर्स भी कहते हैं और खुद भी लोग सियाने जो हैं वो एहतियात करते हैं। इट इज नेवर माइंड। ओके नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार पाजनात बिफोर 2 days मुझे को मेरा ख्याल है आफ्टर मैनी इयर्स ट्रेन पे बैठने का इत्तेफाक हुआ है, जिसे हम उर्दू में रेलगाड़ी कहते हैं। क्या बात है। लो जी, मैं सोच रहा था कि काफी अरसे के बाद बैठ रहा हूँ, ट्रेन का झूठा ले रहा हूँ। लाइमन जो ये दावे किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से और हर गवर्नमेंट की तरफ से किए जाते रहे हैं, और इस गवर्नमेंट ने तो कहा जी कि हमने पता नहीं इनकलाब ले आए हैं। इनकलाब ले आए हैं। और मेरे ये में था कि यार अगर ये 80% कह रहे हैं हमने अच्छी कर दिया है रेल यानी रेलवे, तो लाइमन चलो 50% तो अच्छी हो गई हो। कसम उठा के कह सकता हूँ कि वो जो डाइनिंग कार होती है रेलवे की, उसमें कॉकरोच फिर रहे थे।
यार मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार कॉकरोच फिर रहे हैं, ये पब्लिक सारी देख रही है, इधर पैसे खर्च, गंद पड़ा हुआ सारा, कूड़े वाली बोरी सी एक प्लास्टिक की उसने लटकाई हुई भाई ने, कैंटीन वाले ने, और कॉकरोच ने बकायदा मुझे ऐसे कहा कि किधर भाई जी? मैं कहा यार मैं तो टिकट लेके बैठा हूँ, तू किधर? आगे से उसने मुझे ऐसे किया तो मैं दौड़ गया, क्योंकि तुम्हारी परजाई बहुत डरती है कॉकरोच से। मैंने कहा मुझे भी डरना चाहिए, इस तरह वो ना कहीं माइंड करे कि तुम इतने दिलेर क्यों हो भाई। और फिर मैंने हमें ना गड्डी का चक्कर लगाया, मैंने कहा जरा सारी विजिट तो करूं। वो जो एसी पार्लर सबसे महंगा डब्बा होता है, मैंने कहा जरा उसे भी चेक किया जाए। संबड़ेयाल की बस लग रही थी, वो संबड़ेयाल की, उस पे जो पोशिश चढ़ाई हुई थी ना चमकीले फरोजी कपड़े की, उसकी कोशिश की गई थी। यार मैं कहता हूँ कि जिस बंदे ने वो कलर चूज किया है, मैंने उसका पुमा जरूर लेना है। ये हैरान कुन बात है, ज़हन में आता है कि कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट जरूर हुई होगी। अगर नेचुरल इम्प्रूवमेंट भी हो, ना दावे किए जाए, फिर भी मैं कुछ ना कुछ तो यार कहीं ना कहीं तो पहुंच जाना चाहिए था रेलवे को। नहीं जी नहीं, हंसी आती है, खुदा की कसम हंसी आती है बकायदा देख के। आइंदा इंशाल्लाह मैं अगर दोबारा बैठा तो मैंने उसकी फोटो में उतार के चलानी है ये। अजीजी मैं तो जब भी सर्दियों में बैठा ना ट्रेन में, पता नहीं किधर से ठंडी हवाएं आती हैं। चलो अल्लाह का शुक्र करो तुम्हें कहीं से तो ठंडी हवाएं आती है। भाईजान आपने हाथ में पकड़ी होती हैं बोतलें, उनमें होती है बर्फ, वो तब ठंडी हवा आती है। बोतलों में बर्फ तो मैंने कभी गर्मियों में नहीं डाली। छोड़ो यार। और सर हर तरफ यही हाल है। कल मुझे गंगाराम आईसीयू में किसी मरीज की इयादत के लिए जाना था, तो मैं परेशान हो गया। आईसीयू में गिरी वाला और गर्म अंडे बेचने वाला फिर रहा था अंदर। खैर ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आईसीयू में गिरी बेचने वाला और उबले हुए अंडे बेचने वाला फिर रहा है। हो सकता है डॉक्टर ने वहां के मरीजों को ना मना किया हो गिरी खाने से या गर्म अंडे खाने से, बल्कि गर्म अंडे और गिरी तजवीज की हो, और वो दोनों छाबे वाले मरीजों की हेल्प के लिए वहां तशरीफ लाए हो। ये तो कोई ऐसी बात नहीं। खबरों की तरफ अच्छा जी, खबर है अरकान पार्लियामेंट और वुज़रा की तनख्वाहों में 150% तक इजाफा। तनख्वाहें कमोबेश 2 लाख के करीब हो गईं। इसके अलावा लाखों रुपए के मुख्तलिफ अलाउंसेस भी हैं। जबरदस्त। और ये एहसान करने के बाद हुकूमत ने ये भी पेशकश की है कि अगर अभी भी ये तनख्वाहें कम है, मजीद इजाफा चाहते हैं तो दोबारा बिल लेके आए और इजाफा कर देंगे। ये जो 45,000 से सीधा 1.5 लाख ही कर दिए है ना तनख्वाहें मेंबरों की पार्लियामेंट के जी। मेरा ख्याल है कि अगर ये करप्शन ना को बंदा करे तो इतनी तनख्वाह कोई आदत नहीं है। ठीक है, मगर जो हमारे मुल्क की हालात है और जितनी यहाँ पे गुर्बत है और जो बाकी अवाम में तनख्वाहों की रेशो पाई जाती है, उस हवाले से ये 1,05,000 जो तनख्वाह का इजाफा किया गया ना एकदम, वो बिल्कुल ऐसी है जिसे घर में 2-3 लड़कियां बैठी हों बेचारी कुंवारी, शादी उनकी ना हो रही हो, उम्र उनकी बहुत बढ़ जाए, हल्की हल्की उनको मूंछें भी निकल आए और वालिद साहब अपनी मुच्छों पे हाथ फेर के कहे कि लो जी मैं तीसरी शादी करने लगा। ऐसे शख्स के लिए बीवी या बच्चों को चुप कर जाना चाहिए। वो डायरेक्ट मियां वाली वाले खालू या सरगोदे वाले मामू को फोन करेंगे यार तशरीफ ले आए, आपको आने जाने का किराया हम देंगे, बस आप आ जाए। और वो मियां वाली वाला खालू आए, आके आराम से अपना बड़ा खुस्सा उतार के तो नुक्कड़ में रख के, और मियां वाली के बंदे के गुस्से के साइज का पता है ना तुम्हें क्या होता है? 3.25 मरले। हाय हाय, मैं कहता हूँ जी कि नुक्कड़ में पड़ा हो तो बाहर से कोई बंदा आ जाए तो वो गुस्सा देख के पूछता है कि हैं इतने दरिया समुंदर भी कोई नहीं थे, 2 कश्तियां किन्ने खिला रही है, बाकायदा बोट लगती है वो। और उसके बाद वो मियां अली वाला खालू हल्का सा सरों का तेल मल के हाथों पे भी और एक डंडे के ऊपर वो उठा ले उसको कि भाई जी जरा उठना, अब बच्चियां ने दसिया तुसी तीसरी शादी करने लगे हो तो उठो जरा फिर रस्में हिना कर लीए, उठो जरा रस्में हिना के बाद तुसी इंज टुरोगे जिवें बुलबुले च हिना दिल पजीर नहीं टुरदी। अच्छा जी, एक अमरीकी तहकीक के मुताबिक दुनिया में हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की तादाद
1 अरब से तजावज कर गई है। तो अमरीकी तहकीक ने साथ ये नहीं बताया कि ये जो 1 अरब हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, इनमें से 50 करोड़ अमेरिका की वजह से ही हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला हुए हैं। और अब ट्रंप आ गया, अब 100% इन्हीं की वजह से मुब्तला होंगे। जिस तरह की उसने इलेक्शन से पहले ही हलाला की हुई थी, उस वक्त ब्लड प्रेशर की रेशो एकदम ऊपर गई थी। मुझे उन्हीं दिनों में ब्लड प्रेशर, ट्रंप की वजह से नहीं, मुझे इसलिए ब्लड प्रेशर आई हो गया कि हिलरी हार जाएगी। तो तुम हिलरी के फैन हो? नहीं यार, मैं नहीं उसका फैन, तुम्हारी परजाई उसकी फैन है। मुझे ये डर था कि अगर हिलरी हार गई तो तुम्हारी परजाई ने घर की चीजें तोड़ना शुरू कर देनी। और बहुत स्यापा ये है कि चीजें भी वो कभी इधर तोड़ती है, कभी इधर तोड़ती है, कभी इधर तोड़ती है। बल्कि बच्चों को कहती है कि आपका गोडा नहीं ठीक, आपका अब्बू आएगा तो उसके गोडे पे तोड़ूंगी। भाभी हमारी ने तो बादाम या अखरोट तोड़ने हो ना, इसके वापस आने का इंतजार करती हैं। मैं इतना भी जाहिल नहीं, मैं सवेरे तोड़वा के जाता। हंसने वाली कौन सी बात है, मैंने अखरोट पकड़ना होता है फिर वो ऊपर थोड़ी मारती है। जी, आपके मोबाइल बैटरी की सबसे बड़ी दुश्मन फेसबुक है, जो चार्जिंग का 20% खा जाती है। ये फेसबुक सिर्फ बैटरी की दुश्मन नहीं, ये घरों के सुकून की भी दुश्मन है। ये पिछले दिनों थैले ने बेचारे ने अपनी बेगम को फेसबुक देखनी सिखा दी। अच्छा। लो जी, जिस दिन इसने सिखाया उससे अगले दिन नहीं किसी ने इसकी फेसबुक पे गलत पोस्ट कर दी। अच्छा। परजाई ने जिंदगी में पहली दफा फेसबुक खोली है, अगे डोनाल्ड ट्रंप की चैमगोइयां लगी हुई। लो जी, उसने बुक परे रख दी और थैले का फेस सुझा दिया। मैं तो इसलिए फेसबुक पे बात ही नहीं करता, मैं फेस टू फेस बात करता हूँ। वाह। हाँ, तो जो तेरे को सौदा है मार्केट च भाव। और वैसे भी तुम माशाल्लाह मुंह थल्ले लगते हो। मैं नहीं चलाता फेसबुक, मेरा लाइसेंस नहीं बनया तो मैं किस तरह चलावा। वाह वाह, जगह जगह नाके लगे। बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।